So welcome to all of you in this course, manufacturing processes in the fifth semester. Manufacturing processes. The subject code is PCCME303. This is LTP, that is lecture tutorial practical in 1 week. It includes 3 lectures, 0 tutorial and 3 practical in a week. This is a 4.5 credit course. So this theory subject includes 5 module. Module 1 module 1 consists of conventional casting and molding processes. Module 2 include forming processes, conventional forming processes. Module 3 includes metal cutting processes. Module 4 consists of joining processes and some advanced processes such as 3D printing, rapid tooling, etc. Module 5, it consists of all machine tools used for machining of the component, that is machine tools such as lathe, shaper, planer, milling, finishing operations. So we are going to start with the very first topic. What is manufacturing? So manufacturing word is derived from Latin word manu, MANUFACTUS, manufactures, that means made by hand. In simple words, we can say that it is the process of converting raw material. It is the process of converting raw material into desired products. It is called as manufacturing. So this is raw material, which is also known as input. Some of the processes. These processes includes machines, labor or maybe say that manpower, power, and tools, which converts the raw material into desired product, that is output. So this whole system is called as manufacturing.
So classifications of manufacturing. Manufacturing can be classified on the basis of different needs. So first classification is conventional and non-conventional. It may be also called as traditional and non-traditional, or advanced manufacturing processes. Advanced manufacturing. So in another classification is manufacturing can be classified as casting, forming, joining, fourth machining. So casting is also called as zero process, as well as forming is also called as zero process. Joining is a positive process. Machining is negative process. So why we are calling casting as zero process, forming as zero process, joining and machining as positive and negative process respectively? So on the basis of material removal or addition, it is called as zero process, positive or negative process. In casting, there is limited amount of liquid metal which is poured into the die cavity or mold cavity, so same quantity of volume can be produced. In forming, the material is deformed into desired product without removing or adding any materials. So this process includes there is no addition or subtraction of the materials, so this is called a zero process. Joining process, there is a such as welding, adhesive bonding, where addition of the material is added on the material, so this is called as positive process. Machining, in machining process, there is a subtraction of material in the form of chips or removal of material from the raw material as a chip, so this is called as negative process. So move on to the conventional and first conventional and non-conventional manufacturing. So conventional manufacturing and second one is non-conventional manufacturing. So in why it is called as conventional and non-conventional? In conventional welding process, conventional manufacturing process, there is a direct contact between tool and workpiece. There is a direct contact between tool and workpiece, but there is no contact. There is no contact between tool and workpiece. So there is a direct contact between tool and workpiece. So the tool material should be harder than the base material, because if it will hard, then the machining is possible, but there is no requirement of as such. There is no requirement of soft or hard materials on the tool. There is direct contact in conventional manufacturing. There is direct contact between tool and workpiece, so there is a roughness on the surface because of the scratch mark or pitch mark. That's why there is a less surface finish. Good surface finish
these are the these are the differences. If we are talking about the conventional machining process, so there is a power consumption in conventional manufacturing process. Power consumption is less. So in which comparison we are talking about the power consumption? So we are talking about material removal rate. For same material removal rate, power consumption in conventional manufacturing processes is less, but in non-conventional power consumption is high for the same material removal rate. In opposite, if we are talking about material removal rate for the same power consumption, so material removal rate is very less for the same power, as there just opposite, material removal rate is high for the same power consumption. So these some of the differences between conventional and non-conventional manufacturing and machining processes. So move on the topic casting, that is module 1, which is the classification of manufacturing process. Casting, that is zero process. Casting is the zero process. Casting is a manufacturing process in which a liquid metal is usually poured into a mold. That means you are initially making a liquid metal which is poured in the mold, which contains a hollow cavity to the desired shape. So as you wish, as per your requirement, you prepare a mold. In the mold you are pouring the metal, that is liquid metal. After solidification we get a desired product, that is called as casted product, or this process is called as casting process. So in casting process there is we are talking about sand casting. We have started with sand casting. In sand casting there is two boxes, or called as flask, of the same size, whose cross sectional whose only the upper and which does not contains upper and lower part, only contains boundary walls, that is known as flask. Both are flask. So upper portion, that is, if we are looking at it from front side, so this is look like this. The lower part is known as drag and upper part is known as cope. This is made of metals. So in this process the mold cavity prepared in between two and the liquid metal is poured into this. So after solidification we break this mold and we get a desired product. For so for casting of two components we use only cope and drag box. For example, if we are going to cast a product like this, so there is a two option. Either this is called this is the final product you need to be produced, final product. So there is a pattern which is used for making the mold. So pattern is made either two way. Either you can split in this form. So first portion is attached in cope and second portion is attached in drag. But there is a second option as well. You can split these into these forms. So one pattern, second pattern and third pattern. First pattern, second pattern, third pattern. So you need three boxes, that is like this. So bottom part always known as cope, drag,
top part is always known as scope and middle part is known as cheek, CHEEK, cheek. So let's move to the next pattern. What is pattern? So pattern होता क्या है? तो pattern is the replica of the object to be made. तो जो प्रोडक्ट आपको बनाना है वो उसका जस्ट रेप्लिका होता है. तो पैटर्न से आप करते क्या हो? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर डूइंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, फर्स्ट ईयर वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में पूरा कास्टिंग आपने ओवरव्यू देखा होगा, जिसमें करते क्या है कि आप सबसे पहले एक मिक्सचर तैयार करते हो. किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है? मिक्सचर होता है सैंड, क्ले, वाटर, एडिटिव्स, इन सब का मिक्सचर होता है. इस मिक्सचर को क्या करते हैं? सबसे पहले आप करते क्या हो? ड्रैग बॉक्स में फिल कर देते हो. सबसे पहले आप ड्रैग बॉक्स में आप पहले पैटर्न जो सपोज आपका पैटर्न है क्यूबिकल फॉर्म का, तो आप सबसे पहले करते क्या हो कि क्यूब को आप पुटअप करोगे अपोजिट साइड में. फिर उसके बाद आप फ्लास्क रखोगे, दैट इज मीन्स आप क्या रखोगे? तो प्रोसेस क्या होता है आपका सैंड कास्टिंग का? प्रोसेस, आप पैटर्न को क्या करते हो? जस्ट पैटर्न को आप उल्टा ऑन द ग्राउंड ऑन ए फ्लैट बॉटम आप पुट करते हो. उसके बाद आप ड्रैग पोर्शन, जो आपका ड्रैग पोर्शन है वो पुट करते हो. उसके बाद उसमें सैंड फिल करके उसमें रैमिंग करते हो. प्रॉपर रैमिंग करने के बाद जस्ट उसको फ्लिप करोगे. फ्लिप करने के बाद उसके ऊपर से कोप बॉक्स रखोगे, कोप बॉक्स या कोप फ्लास्क रखोगे. उसके बाद क्या करोगे आप? अगर पैटर्न का दूसरा पीस है तो आप उसको पुट करोगे, अदरवाइज अगर नहीं कोई स्प्लिट पीस है तो आप उसको डायरेक्टली पुट करके उसमें रनर और राइजर इंस्टॉल करोगे. और उसके प्रॉपर प्लेसिंग करने के बाद उसमें सैंड मिक्सचर पुट करोगे. पुट करने के बाद आप प्रॉपर रैमिंग करोगे. रैमिंग करने के बाद आप क्या करोगे? प्रॉपर रैमिंग करने के बाद रनर और राइजर पिन रिमूव करोगे. फिर उसके बाद दोनों बॉक्सेस को ओपन करोगे और जस्ट फ्लिप करके ऐसे रख दोगे जस्ट. तो उसके बाद क्या करोगे आप? पैटर्न बॉक्स को हल्का सा सेक करके आप रिमूव कर लेते हो. एंड आफ्टर डैट आप क्या करते हो? फिर से उसको उसमें गेटेड उसमें रनर आप बना देते हो, रनिंग पैटर्न बना देते हो ताकि आपका लिक्विड मेटल फ्लो हो सके मोल्ड कैविटी तक. फिर उसके बाद कोप बॉक्स को उसमें ड्रैग के ऊपर रख के फिट करोगे और लिक्विड मेटल मोल्ड मेल्ट करने के बाद आप उसमें पोर कर दोगे. तो थोड़े टाइम बाद जैसे ही वो कूल होता है आप सॉलिडिफाई हो जाता है, तो फिर उसको ब्रेक कर देते हैं. तो आपका इस तरीके से प्रोडक्ट कास्ट हो जाता है. तो ये प्रोसेस है. तो हम कुछ इसका एक्चुअल देख लेते हैं फिगर कैसा है. ये बॉक्स के दोनों साइड में नट एंड बोल्ट लगा होता है, जो कि क्या करता है आपका प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए, ताकि बॉक्सेस शिफ्ट ना हो एक दूसरे के ऊपर. उसके प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए ये होता है, इसमें आपको इंसर्ट करना होता है. तो ये चारों तरफ आपका सैंड मिक्सचर है.
ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रैग बॉक्स, ये हो गया आपका कोप, ये हो गया आपका क्लैंप, ये आपका ये पोर्शन जो है इसको बोलते हैं पोरिंग बेसिन, दिस इज कॉल्ड एज स्प्रू। यहाँ पे एक मेटल का पीस रखते हैं ताकि जब आपका लिक्विड मेटल यहाँ से फ्लो करे तो डायरेक्टली यहाँ पे हिट करेगा तो आपका सैंड मिक्सचर, सैंड का जो वॉल है वो इरोड होगा, तो उसके इरोजन से बचाने के लिए यहाँ पे मेटालिक पीस रख देते हैं ताकि आपका मटेरियल इरोड ना हो, सैंड मिक्सचर इरोड ना हो और वो मिक्सचर के साथ मिल ना जाए, मेटालिक पीस। दिस इज कॉल्ड एज रनर। इसको बोलते हैं हम स्कीम बॉब, स्कीम बॉब। अब इसका एप्लीकेशन बता देते हैं क्या होता है। ये है गेट जिसके थ्रू आपका मटेरियल मोल्ड, दिस इज कॉल्ड एज मोल्ड, जिसके अंदर आपका मटेरियल कास्ट करना है, और ये है आपका राइजर। सबका फंक्शन देख लेते हैं होता क्या है। यहाँ पे वेंटिंग करते हैं, वेंट। तो सबसे पहले होता क्या है कि आपका सबसे पहले ड्रैग बॉक्स हो गया, उसके ऊपर कोप बॉक्स हो गया, फिर आप क्या करते हो कि ये जो है पोरिंग बेसिन, पोरिंग बेसिन में क्या करते हो, सबसे पहले आप यहाँ पे मटेरियल, लिक्विड मटेरियल यहाँ से पोर करोगे। जैसे ही आप पोर करते हो तो यहाँ पे एक स्मूथ कर्व बना हुआ है, जिससे क्या होगा आपका मटेरियल जब आप पोर करोगे किसी एक डिस्टेंस साइड से तो यहाँ पे मटेरियल स्मूथली रन स्प्रू में फ्लो करेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, डायरेक्टली अगर आपका हिट करोगे तो हो सकता है कि आपकी जो वॉल है वो इरोड हो, सैंड वॉल इरोड हो यहाँ से, और वो लिक्विड मेटल के साथ मिक्स हो जाए, और जब वो मिक्स हो जाएगा तो वो आपके यहाँ पे मेटल में चला जाएगा, तो मेटल में चला गया तो आपका डिफेक्ट हो जाएगा। तो उसके बचाने के लिए आप यहाँ पे स्मूथ फ्लो के लिए आप चैनल बना देते हो, तो इसको बोलते हैं पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन से आपका लिक्विड फ्लो होता है वो कहाँ जाता है, स्प्रू में। तो स्प्रू का डिज़ाइन ऐसा करते हैं कि ये कोनिकल शेप का होता है। तो कोनिकल शेप का ऐसा क्यों करते हैं, हम सिलिंड्रिकल भी रख सकते थे, पर कोनिकल ये ऐसा क्यों रखते हैं, ताकि आपका कोनिकल होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है। और आप हाइट से जा रहे हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एयर बाहर से, ऐसा ना हो कि आपका कुछ ज़्यादा प्रेशर बाहर से एयर ड्रॉ ना कर पाए, इसलिए आप इस तरीके का चैनल बनाते हो। तो यहाँ से कोई एयर ना सक करे, ताकि अगर एयर सक कर चला गया इसके अंदर तो फिर एयर बबल्स चले आएंगे, तो वो भी एक तरीके का डिफेक्ट है। तो यहाँ से स्प्रू से मटेरियल होता हुआ कहाँ फ्लो करेगा, आपका इस पार्ट पर स्ट्राइक करेगा हाई वेलोसिटी से। जब हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे सैंड मिक्सचर क्या हो सकता है, जो सैंड मोल्ड बनाया हुआ आप, वो हो सकता है कि इरोड हो जाए, इरोजन हो। तो सैंड पार्टिकल कि वो अगर निकलते हैं तो वो अगर मिक्स हो जाते हैं आपके लिक्विड मेटल के साथ तो वो एक डिफेक्ट होगा। तो उससे बचाने के लिए एक मेटल की स्ट्रिप रखते हैं जो कि क्या करता है कि आपका सैंड इरोजन को बचाता है। इसके बाद आपका लिक्विड मेटल यहाँ से रनर से होता हुआ स्कीम बॉब में जाता है। अब स्कीम बॉब का शेप जो होता है ऐसा क्यों है, तो यहाँ से लिक्विड मेटल जैसे आपने पोर किया तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा किसी न किसी के साथ, तो कुछ ना कुछ हैवी मेटल बनेगा या फिर लाइट वेट बनेगा। तो जो भी हैवी वेट मटेरियल होगा वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे, और जो भी लाइट वेट मटेरियल होगा, जो इम्प्योरिटी होगा वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और प्योर मेटल आपका सेंटर से फ्लो होता हुआ, गेट से होता हुआ आपका मोल्ड में फिल होना स्टार्ट हो जाएगा लेयर बाय लेयर, और धीरे धीरे फिल होता हुआ आपको राइजर में भी फिल होगा। तो ये फाइनली राइजर तक जब आपको ऊपर विजिबल हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ ऊपर तक पहुंच गया, तो आप कंफर्म हो जाते हो कि मोल्ड का कैविटी फिल हो चुका है। तब आप यहाँ से लिक्विड मेटल का पोरिंग करना क्लोज बंद कर देते हो। तो राइजर का काम क्या है, तो राइजर का पहला काम तो समझ में आ गया कि पहला काम है कि विजिबिलिटी बढ़ाना, कि आपका मोल्ड कैविटी जो है वो फिल हो चुका है कंप्लीट। जैसे ही आपको ऊपर से दिखेगा कि इसमें ऊपर दिख रहा है लिक्विड मेटल, दैट मीन्स आपका मोल्ड कैविटी कंप्लीटली फिल हो चुका है और आप पोरिंग करना बंद कर दोगे। तो पैटर्न क्या था, रिप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम इस शेप का होगा पैटर्न। तो पैटर्न आइदर वुड का होता है, वुड का बनाते हैं, या फिर किसी मेटल का या फिर एलॉय का आप बना सकते हैं।
या फिर वैक्स या फिर प्लास्टिक किसी चीज़ मटेरियल का आप बना सकते हो, वैक्स प्लास्टिक्स का बना सकते हो। तो ये पैटर्न जो होता है जिस शेप का होता है उसी शेप का आपका मोल्ड क्रिएट करता है। तो राइजर का काम क्या है कि जैसे ही आप अब इसके बाद मटेरियल आपने फिल करके छोड़ दिया, जैसे ही आपका मटेरियल सॉलिडिफाई होगा, तो मटेरियल सॉलिडिफाई होता है तो मटेरियल के अंदर मटेरियल श्रिंक करता है। तो श्रिंक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसका राइजर का फंक्शन यही है, जैसे ही ये श्रिंक करेगा, लिक्विड मेटल इसमें ऑलरेडी पहले से फिल रहता है, पहले ये सॉलिडिफाई करता है, फिर ये ऐसा डिजाइन किया जाता है। तो धीरे धीरे इसके बाद में सॉलिडिफाई होता है। तो जब तक से सॉलिडिफाई होकर श्रिंक होगा तब तक से लिक्विड फॉर्म में है, तो ये क्या करेगा, चारों तरफ से मटेरियल सप्लाई कर देगा। तो मटेरियल अगर श्रिंक भी होता है तो ये कंपनसेट कर देता है। तो राइजर का काम क्या हो गया, पहला काम हो गया कि विजिबिलिटी शो करना कि आपका मोल्ड जो है कम्प्लीटली फिल हो चुका है, और दूसरा काम क्या हुआ कि आपका सॉलिड श्रिंकेज जो होता है, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज जो होता है उसको कंपनसेट करता है। कौन करता है, राइजर। एक और चीज़ आप लोग देख रहे होगा, वेंट हम क्यों करते हैं उसके मोल्ड बॉक्स पे, ताकि जब लिक्विड मेटल आपका यहाँ से फ्लो करेगा तो इस मिक्सचर के अंदर आपका क्या है, सैंड प्लस वाटर प्लस क्ले प्लस एडिटिव्स, स्टिल इसमें वाटर कंटेंट है। जैसे ही आपका मोल्टन मटेरियल हाई टेम्परेचर में लिक्विड मेटल जब यहाँ पे जाएगा तो फिर क्या होगा, वेपर्स बनेंगे। वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। अगर ये वेपर प्रॉपरली आपका रिमूव नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा, वो इसी के अंदर ट्रैप्ड रह जाएंगे। जब वो ट्रैप्ड रह जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बबल्स के फॉर्म में एयर ट्रैप्ड हो जाएंगे। तो उसी को बोलते हैं डिफेक्ट, वो ब्लो होल्स डिफेक्ट। तो वो डिफेक्ट रह जाएगा जो कि आपको डिजायर्ड नहीं था। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वेंटिंग करना पड़ता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, सबसे पहले देखते हैं कोई भी मेटल जो होता है, प्योर मेटल, उसका टाइम टेम्परेचर कर्व देख लेते हैं। टाइम टेम्परेचर, एक्स एक्सेस पर टाइम, वाई एक्सेस पर टेम्परेचर। तो देख सकते हो इसका कर्व कैसा होता है। ये जो फेज है लिक्विड का है, ये जो फेज है लिक्विड प्लस सॉलिड, और ये जो फेज है सॉलिड का है। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर आपका क्या होता है, लिक्विड फेज में होता है कम्प्लीटली। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन करते चले जाओगे आपका क्या होगा, लिक्विड फेज से लिक्विड प्लस सॉलिड फेज में आएगा कुछ समय के लिए। उस समय पे लिक्विड और सॉलिड दोनों मिक्सचर आएंगे। फिर जब टेम्परेचर डाउन करोगे आप तो धीरे धीरे क्या होगा, टाइम के साथ साथ वो कूल होना स्टार्ट होगा और सॉलिड फेज में कन्वर्ट होगा। तो आपका जो, जैसे आप लिक्विड मेटल जब पोर करते हो तो वो लिक्विड फॉर्म में कम्प्लीटली रहता है, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में, हाई टेम्परेचर रहता है। जैसे अगर आयरन की बात करें तो 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 1539 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। उससे ऊपर ही रखते हैं 150-200 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि जब आप पोर करो तो तुरंत सॉलिडिफाई ना हो। अदरवाइज आपका स्प्रू और रनर और गेट में ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो थोड़ा सा 1539 से 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हीट करते हैं ताकि आपका मटेरियल सॉलिडिफाई ना हो। तो जैसे ही आपका आपने पोर किया और वो मोल्ड कैविटी के अंदर फिल हुआ तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा। कम होगा तो मटेरियल क्या करता है, श्रिंक करता है। लिक्विड फॉर्म में भी श्रिंक करता है, मटेरियल। और जब लिक्विड से लिक्विड सॉलिड दोनों फेज था, इस पॉइंट तक भी क्या होता है, श्रिंकेज होता है। तो इसमें 3 तरीके की श्रिंकेज आती हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो फर्स्ट जो है लिक्विड श्रिंकेज, सेकंड जो होता है सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, थर्ड जो होता है सॉलिड श्रिंकेज। ठीक है। तो जो लिक्विड श्रिंकेज है और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, इन दोनों फेस में लिक्विड अवेलेबल है। तो हम इस चीज़ को कंपनसेट कैसे करते हैं, इसको कंपनसेट करता है वहीं आपका राइजर। क्योंकि इस समय पे जो भी श्रिंकेज होगा आपका पूरा मोल्ड जो है आइदर लिक्विड फॉर्म में है, या फिर जब इस फेज में होगा तो लिक्विड या सॉलिड फेज में, तभी आपका जो है आपका राइजर के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में मटेरियल है वहीं आपको कंपनसेट कर पाएगा।
और जैसे ही आपका मटेरियल सॉलिड फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स इस फेज में आ गया, तब राइजर कुछ नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों में जब जो भी श्रिंकेज होता है वो कौन कंपनसेट करता है? राइजर। तो राइजर का काम क्या हो गया? राइजर का फंक्शन हो गया पहला, कंपनसेट लिक्विड प्लस सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज इन कास्टिंग, but and second, visibility for complete filling of mold cavity। तो इसका दो काम हो गया कि आपको कंपनसेट करता है लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को, और आपका विजिबिलिटी बढ़ाता है, राइजर का काम हो गया। अब रही बात ये जो आपका फेज है सॉलिड श्रिंकेज जो है, इसको कैसे कंपनसेट करेंगे? आपने तो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को तो कंपनसेट कर लिया, बट सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट कैसे करोगे? तो हम करते क्या है कि अगर सॉलिड के टाइम पे श्रिंक होकर और आपका मटेरियल जो है छोटा हो गया, तो आप करते क्या हो कि जो आप पैटर्न बनाते हो, पैटर्न आपको सपोज इस साइज़ का पैटर्न बनाना है 6 इंच बाई 6 इंच का, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा उससे बड़े साइज़ का आप पैटर्न बनाते हो, थोड़ा सा बड़ा। ये एग्जांपल है, कोई प्रैक्टिकल बेसिस नहीं है। 6 इंच और कुछ 0.02 कुछ भी हो सकता है, 6.02 कुछ इस तरीके से। तो आपका जब मटेरियल श्रिंक होगा, आपने मोल्ड कैविटी इतने शेप का बना दिया, तो जब वो मटेरियल सॉलिड फॉर्म में जब आएगा, जब श्रिंक होगा, तो वो उतना श्रिंक होकर फिर से जो साइज़ आपका प्रोडक्ट का चाहिए वो उतने पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट कैसे कर सकते हो? पैटर्न का साइज थोड़ा सा बड़ा देखें। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग डायमेंशन है। जो मैंने ये एग्जांपल लिया है एट रैंडम, उसके बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आते हैं बैक फिर से। तो बाकी सारी चीज़ क्लियर हो गया। ड्रैग जो है पूरा सेटअप का बॉटम पार्ट होता है, कोप जो है आपका अपर पोर्शन होता है, ये मोल्ड है जो कि आपका कैविटी, मोल्ड कैविटी है जिसके अंदर आपको मटेरियल कास्ट करना है। ये राइजर है जिसका काम क्या है, कंपनसेट लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपनसेट करना, प्लस विजिबिलिटी को बढ़ाना कि आपका मटेरियल फिल हो चुका है मोल्ड के अंदर। इसकी गेट के थ्रू क्या होता है, आपका मटेरियल फ्लो होता हुआ फिल होता है मोल्ड कैविटी में। स्कीम बॉब क्या करता है, लाइट इम्प्योरिटी और वेटेड इम्प्योरिटी को डिस्टिंग्विश कर देता है, और प्योर मटेरियल आपका फ्लो होता है सेंटर से, रनर से होता हुआ। स्प्रू का काम क्या है, तो आपका स्मूथली फ्लो कराना मटेरियल का, ताकि आपका लिक्विड मेटल किसी तरीके का एयर एस्पिरेशन ना कर पाए, एयर सक ना कर पाए आपके सैंड मिक्सचर से होता हुआ। और पोरिंग बेसिन को इस तरह से स्मूथ क्यों बनाया था, ताकि आपका लिक्विड मेटल किसी डिस्टेंस हाइट से आप पोर करते तो आपका सैंड वॉल जो है वो इरोड ना हो और स्मूथली फ्लो होता हुआ आपके मोल्ड कैविटी तक फिल हो सके। तो प्रॉपर जो सीक्वेंस हो गया आपका कास्टिंग का सीक्वेंस हो गया, बोरिंग बेसिन, स्प्रू, रनर, गेट, मोल्ड एंड राइजर। दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द कास्टिंग प्रोसेस। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जैसे आपको मैंने बताया था कि किसी भी मेटल का मेल्ट करते हैं तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट से 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा ज़्यादा हीट करते हैं, ताकि वो मटेरियल जब आप पोर करो तो जैसे ही वो कैविटी तक जाए तो कम्प्लीटली सॉलिडिफाई ना हो जाए। पहले ही अगर सॉलिडिफाई हो गया तो कैविटी फिल नहीं हो पाएगा, जिससे कि आपकी फ्लूइडिटी, मटेरियल की फ्लूइडिटी प्रॉपर बनी रहे। अब ये तो हो गया मेटल्स का। कुछ मेटल्स है जिसके लिए टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर। इनका मेल्टिंग पॉइंट से 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रखना पड़ता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। दैट मीन्स हीट लॉस और हीट डिसिपेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर आप 150 से 250 भी रखते हो तो क्या होगा, आपका मटेरियल जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इस केस में हम थोड़ा और ज़्यादा हीट करते हैं ताकि मटेरियल सॉलिडिफाई जल्दी ना हो, आपका कैविटी कम्प्लीटली फिल हो सके।
तो इसलिए आप क्या करते हो 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा हीट करते हैं। कुछ और टर्म यूज होते हैं जैसे कि कोर 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 का यूज करते हैं इंटरनल होल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, होल्स और कैविटी कह सकते हो कि इंटरनल होल्स और कैविटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्हें प्रोडक्ट, जैसे सपोज आपका प्रोडक्ट बनाना है क्यूबिकल शेप का है, लेकिन आपको यहाँ पे थ्रू होल चाहिए, हॉलो चाहिए, थ्रू हॉलो। तो इसके लिए आप करते क्या हो कि आप एक कोर लेते हो। कोर भी जो बना होता है वो भी सैंड का ही मिक्सचर होता है, सैंड यही मिक्सचर होता है, सैंड वाटर क्ले एडिटिव्स लग मिले होते हैं। तो ये कोर इसको सबसे पहले बनाते हैं और इसको प्लेस कर देते हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मान लो इसके अंदर कोर होल करना है, थ्रू होल करना है, तो यहाँ पे आप कोर को क्या करोगे, इंसर्ट जहाँ पे आपको करना है उसके इस लोकेशन के हिसाब से इंसर्ट कर दोगे। और वहाँ पे जब मटेरियल फिल होगा तो यहाँ पे मटेरियल जब फिल हो जाएगा तो आपको किसी तरीके का कास्टिंग नहीं होगा, आपका केवल कास्टिंग कहाँ पे होगा, इसके चारों तरफ। तो क्या होगा कि जब आप सॉलिडिफाई हो जाएगा, ब्रेक करोगे, तो ये भी सैंड का मिक्सचर का बना है, इसको भी ब्रेक करके आप रिमूव करोगे तो कैविटी होल्स मिल जाता है। तो इस कोर को होल्ड करने के लिए जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका कोर कहीं भी अगर आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे तो वो तो मिसप्लेस हो जाएगा, तो आपको एक एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो वो जो एरिया प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं कोर प्रिंट। ये जो एरिया प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं कोर प्रिंट। तो कोर को होल्ड करने के लिए जो एरिया प्रोवाइड की जाती है, द एरिया ऑन विच कोर इज हेल्ड इज नोन एज कोर प्रिंट। तो कोर और कोर प्रिंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको पूरा, जैसे आपका ये प्रोडक्ट है, आपको होल तो करना है लेकिन थ्रू होल्स नहीं करना, कुछ ही पीस तक, कुछ ही लेंथ तक आपको होल करना है, थ्रू होल नहीं करना। सपोज अगर ये आपका लेंथ है 20 सेंटीमीटर और आपको होल करना है मान लो 10 ही सेंटीमीटर तक, तो आप क्या करोगे, तो इसके लिए सपोज एक साइड में आप तो सपोर्ट यहाँ पे दे दोगे एक साइड में कोर प्रिंट के थ्रू, लेकिन दूसरी साइड आप सपोर्ट नहीं दे पाओगे। तो उसके लिए करते क्या है कि कोर को आप करते क्या, होल्ड कैसे करते हो, जैसे ये आपका कोर है, ठीक है। तो कोर के लिए आपने कोर प्रिंट का एरिया दे दिया और इसको होल्ड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चैपलेट प्रोवाइड करते हैं, चैपलेट्स बोलते हैं, इस शेप का होता है। वो क्या करेगा, इसको होल्ड करेगा। जैसे हम देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे ये आपका मोल्ड बॉक्स हो गया, ये आपका मोल्ड हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर पे सपोज आपको बनाना है, ये हो गया आपका कोर प्रिंट, ये हो गया आपका कोर, और इसको कैसे सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे एक चैपलेट प्रोवाइड करेंगे। चैपलेट मेटल का बना होता है, उसी मेटल का बना होता है जिस मेटल का आपको कास्ट करना होता है। जैसे मान लो आपको कार्बन स्टील कास्ट करना है, तो कार्बन स्टील मटेरियल का ही आप क्या करोगे, चैपलेट प्रोवाइड करोगे यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट देगा और यहाँ पे कोर प्रिंट से आपका कोर सपोर्टेड है ऑलरेडी। तो जैसे आपका, जैसे ये गेट हो गया, ये यहाँ पे स्कीम बॉब हो गया, ये रनर हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आपका मटेरियल यहाँ पे फ्लो करता हुआ लेयर बाय लेयर फिल होगा, तो लेयर बाय लेयर फिल होगा तो ये मटेरियल जो होता है उसी मटेरियल का बना होता है। तो जो लिक्विड मेटल का टेम्परेचर है उसकी वजह से क्या होगा, ये भी मटेरियल साथ साथ में मेल्ट होता जाएगा और साथ ही में सॉलिडिफाई भी होता चला जाएगा। तो एट अ टाइम मेल्ट भी हो रहा है, सॉलिडिफाई भी हो रहा है और इसको कोर को सपोर्ट भी कर रहा होता है। ऐसा डिज़ाइन करते हैं इसका शेप, ताकि वो साथ साथ में सॉलिडिफाई होता जाए, मेल्ट होता जाए और ये फाइनली इस तरीके का आपका मेटल फिल हो जाता है। और यहाँ पे क्या लगा होता है, आपका राइजर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोर को होल्ड करते हो। तो किससे होल्ड करते हैं, चैपलेट, ठीक है। कोर प्रिंट वो एरिया जो आप
जो जिससे आप क्या करते हो, कोर को होल्ड करते हो। तो अगर आप इसका पैटर्न देखोगे तो पैटर्न कैसा होगा, मान लो सपोज ये क्यूबिकल शेप का है, तो क्यूबिकल शेप का है तो पैटर्न जो एक्चुअल इसका दिखेगा आपको वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। सॉलिड पैटर्न होगा, सॉलिड पैटर्न है वुड का पूरा, सॉरी यहाँ पे पीस जो होगा थोड़ा सा प्रोट्रूडेड होगा, निकला होगा बाहर की तरफ, थोड़ा सा बाहर की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सा देख लेते हैं क्लियर पिक्चर। इस तरीके से निकला होगा, ये पूरा का पूरा पीस जो होगा वो सॉलिड होगा। तो जब आप इस पीस को रिमूव करोगे, आप अब इसको कैसे बनाओगे, स्प्लिट दो पीस में, पहला पीस दूसरा पीस, पहला पीस किस में रहेगा, ड्रैग में रहेगा, दूसरा पीस किस में रहेगा, क्रॉप में रहेगा, और ये पीस जो रहेगा वो सेंटर पे रहेगा। तो जब आप पहला पीस को यहाँ पे रख के मोल्डिंग करोगे, फिर उसके बाद दूसरा पीस को ऊपर रख के मोल्डिंग करोगे और रिमूव करोगे तो कैसा शेप बनेगा, इस तरीके का शेप आपको कैविटी के अंदर मिल जाएगा। और होल कैसे बनाओगे, तो ये कोर को यहाँ पे फिट कर दोगे पैटर्न को रिमूव करने के बाद। तो फिर क्या होगा आपका, फिर चैपलेट इंसर्ट करोगे, चैपलेट सेट करने के बाद आप लिक्विड मेटल फिल करना स्टार्ट करोगे, तो आपका क्या होगा, मटेरियल फिल हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका जैसे मटेरियल जो होता है आप फिल करते जाते हो तो बॉयंसी फोर्स होता है, आपने पढ़ा होगा मे बी फ्लूइड मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स में, जैसे लिक्विड मेटल फिल होता जाएगा इस कोर के ऊपर एक बॉयंसी फोर्स लगाएगा। तो अगर आप ऊपर से सपोर्ट नहीं दोगे तो हो सकता है कि ऊपर ये शिफ्ट कर जाए लिक्विड मेटल्स के फोर्स से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी किसी केस में आपको चैपलेट दूसरी साइड से भी प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो बुआंसी फोर्स से सपोर्ट कर सके उसको। तो आप क्या करते हो, दूसरी साइड से भी सपोर्ट करते हो ताकि वो अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहे। तो क्या क्या हमारा क्लियर हो गया, पूरा सेटअप क्लियर हो गया। जैसे पोरिंग बेसिन का फंक्शन क्या है ताकि मटेरियल इरोड ना हो, स्क्रू का फंक्शन क्या है मटेरियल स्मूथली फ्लो हो ताकि किसी तरीके का इसमें एयर रिस्पिरेशन ना आए, इसलिए हम कोनिकल शेप का बनाते हैं। यहाँ पे मेटालिक पीस लगा है ताकि कोई किसी तरीके का सैंड इरोजन ना हो। ठीक है, रनर से होता है आपका मटेरियल फ्लो होता है आगे, स्कीम बॉल में इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, फिर लिक्विड मेटल गेट से होता हुआ कैविटी में फिल होता है। यहाँ पे कोर लगा होता है, कोर को होल्ड करने के लिए कोर प्रिंट होता है। अगर आपका थ्रू होल नहीं करना है, हाफ लेंथ तक करना है या जितने भी लेंथ तक करना है तो उसके लिए चैपलेट प्रोवाइड करते हैं। चैपलेट उसी मटेरियल का बना होता है जिस मटेरियल का कास्टिंग करना होता है, और इधर दोनों साइड से सपोर्ट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर। राइजर का फंक्शन क्या है, ये विजिबिलिटी दिखाना शो करता है कि आपका कैविटी फिल हो चुका है, प्लस लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपनसेट करता है। सॉलिड श्रिंकेज कौन कंपनसेट करता है, तो सॉलिड को आपका पैटर्न का साइज़ बड़ा बनाते हैं, तो पैटर्न के ऊपर अलाउंस दे देते हैं जिससे कि वो साइज़ आपका एक्चुअल रिड्यूस होके एक्चुअल साइज बन जाता है। वेंट का फंक्शन क्या है, ताकि जो भी आपका लिक्विड मेटल वाटर के साथ वाटर वेपर जो बनाएगा वो वाटर वेपर ईजिली बाहर डिस्चार्ज हो जाना चाहिए ताकि किसी तरीके का एयर बबल्स इसके अंदर ना आए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं कोर चैपलेट हो गया। कुछ टर्मिनोलॉजी और यूज करते हैं, चिल्स का फंक्शन ये होता है कि आप जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे कि आपका कुछ कुछ पोर्शन होता है जहाँ पे कॉर्नरिंग एरिया, जैसे कि सपोज मान लो आपको इस तरीके का प्रोडक्ट कास्ट करना है, जैसे सपोज इस तरीके का प्रोडक्ट है जिसको आपको कास्ट करना है। ठीक है,